is so we are going to start this chapter in which we will study about the books of Aryabhat. Those books written by Aryabhat we are going to study, and these are the questions of GK, GS, general studies and general knowledge. They will come in the exam papers of government or exams or competitive exams. So those who are preparing for SSC, Bank, Railway, Delhi Police, UP Police, Army, Air Force, Navy, IAS, IPS, UPSC, UPPCS exams, SDM, DM post, you have to prepare and you have to learn all these. Or you are preparing for CCS University, Chaudhary Charan Singh University, these questions will come in your exam. Okay, so these are books written by Aryabhat, and Aryabhat has written the books, 4 books. Arya Bhatia, Arya Bhatia, okay, Arya Bhatia is a book. Arya Bhatia, Rishabh's Good Theory of Indian. Rishabh's Good Theory of Indian. Okay, who is Rishabh? Rishabh is a Jain and it is a Tirthankar, first Tirthankar, but who I think he would be a different Rishabh, and if it is he is the same Rishabh of Jain family, so we have to read for that the complete book. Arya Bhatia and Rishabh's Good Theory of Indian, and Das Geetika, Arya Siddhant. So this is very important book, Arya Bhatia and Arya Siddhant. You have to read, not complete the whole book. You have to learn these names. So these questions will be asked. Okay, now we are going to learn Arya Arthashastra. This is the another book, Arthashastra book, written by the Chanakya. And who is Chanakya? Chanakya is Kautilya. Okay, guys, Arthashastra book written by Chanakya or Kautilya in Sanskrit language. Text is a, and it is written in the book Governance, Administration, Economics, Warfare and Social Organization. सो प्यारे दोस्तों, ये वो किताबें हैं जिनके नाम लिखे जा रहे हैं। ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। आर्य भाटिया, ऋषभ के अच्छी थ्योरी भारत की, ठीक है, भारत के ऋषभ की अच्छी थ्योरी, दास गीतिका, आर्य सिद्धांत, ये 4 किताबें BA, BSc, BCom, और इनमें आपके CCS यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के नाम से बुक रहती है, एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से रहती है, और दूसरा आपकी भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव के नाम से ये बुक रहती है। ठीक है, ये आपके पेपर्स आते हैं। नाउ IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ आर्य अर्थशास्त्र बुक रिटन बाय द चाणक्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है इन संस्कृत टेक्स्ट में, और इसमें गवर्नेंस, भारत का राज्य की सरकार, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, गवर्नेंस, ठीक है, भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, वॉरफेयर, युद्ध, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक संगठन, इनके विषय में हमको पढ़ने को मिलेगा अर्थशास्त्र नामक बुक में, चाणक्य जो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स बाय राधा कुमुद मुखर्जी। This person has written about this चंद्रगुप्त मौर्य and his times, और उसके शासन काल की, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके समय की बातें, कथा, इसमें कहानी लिखने पढ़ने को आपको मिलेगी, सुनने समझने को। राधा कुमुद मुखर्जी ने ये किताब लिखी है।
नंबर सी पॉइंट, नालंदा यूनिवर्सिटी, दिस इज ये नालंदा विश्वविद्यालय एट राजगीर बिहार मगध बाई एम्परर कुमार गुप्ता फर्स्ट, who made this university, the king emperor Kumar Gupta first made this university, Nalanda University at Rajgir, Bihar. It is in Magad also. Bihar was known to Magad in the ancient time and destroyed by Muhammad Bhakhtiyar Khilji. Bhakhtiyar Khilji Muhammad destroyed this Nalanda University, a Turco-Afghan, in 12th century, and it was made by Kumar Gupta first in 427 CE. Okay guys, now we are going to start new. He killed monks, burned the library, pulled down the structure of the university. Who? Muhammad Bakhtiyar Khilji in 12th century. Turco-Afghan, टर्किश था, अफगानिस्तानी था। नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर बिहार में मगध में है, उसको शासक कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनाया 427 कॉमन एरा में, लेकिन उसको तोड़ दिया मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। एक टर्को अफगानी था और वो 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में उसने मॉन्क्स को मारा, साधु संतों को मारा, उनमें जो बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ाई जाती थी उनको मारा और जला दी किताबों की लाइब्रेरी को जला दिया और स्ट्रक्चर को पुल डाउन कर दिया, तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। ओके गाइज, इंडिया इज ऑल्सो ए member of IUCN. India is a member of IUCN, International Union for Conservation of Nature. राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एकता फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय एकता, ये IUCN, इंडिया भी इसका मेंबर है। और इंडिया ने गाइज इसको कब ज्वाइन किया है? 1969 में MOEFCC के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से। इसकी IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानी जाती है गाइज। और इसको 1948 में इसको जो है अपना वो किया गया है। IUCN को 6 अक्टूबर 1948 में, देश आज़ाद हमारा हुआ 47 में, लेकिन इसको बनाया गया है फ्रेंच टाउन में, ठीक है गाइज। और इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया ने ज्वाइन किया 1969 थ्रू द MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ऑफिस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। भारत ने 1969 में इसको ज्वाइन किया। MOEFCC के नाम से मंत्रालय है किसका? ये आपका प्रकृति का, एनवायरनमेंट का, वातावरण का, आसपास का, ठीक है, वातावरण का, ये अपना एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, माहौल, प्रकृति की मंत्रालय, जंगल की और क्लाइमेट चेंज की जो मंत्रालय है MO, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और जितना भी क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, जंगल में बदलाव हो रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है, इसका मंत्रालय है अपना और भारत का। और ये जुड़ा हुआ IUCN से, इनके मंत्री IUCN में जाते हैं। और IUCN की जो अपने यहाँ पे इंडिया में जो है वो न्यू दिल्ली में 2007 में इसका ऑफिस है। अदरवाइज वैसे इसका जो ऑफिस आप देखेंगे IUCN का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। वो अपना ऑफिस IUCN का हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, नियर जेनेवा के पास में, स्विट्जरलैंड में। 5 अक्टूबर 1948 को ये फ्रेंच टाउन में इस्टेब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसकी
ये जो हेड क्वार्टर है गाइज वो जेनेवा गिलैंड स्विट्जरलैंड में, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी फ्रेंच टाउन में। ठीक है गाइज, तो आप इसमें 5 अक्टूबर कर लीजिए 6 अक्टूबर की बजाय, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 1948 फ्रेंच टाउन फर्स्ट मीटिंग। ओके गाइज, फर्स्ट MEETING फर्स्ट मीटिंग आपकी यहाँ पर हुई है, और इसका हेड क्वार्टर आपका जेनेवा में है। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा नियर जेनेवा। ओके, नियर जेनेवा। और यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सी लैंड है ये है आपकी जी लैंड। ओके, जी लैंड, और ये आपका स्विट्जरलैंड में गाइस, SWITZERLAND स्विट्जरलैंड जी लैंड में 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर में फ्रेंच टाउन, 5 अक्टूबर में फ्रेंच टाउन में फर्स्ट मीटिंग हुई है। ये इसका हेड क्वार्टर है जी लैंड नियर जेनेवा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हुआ है। एस्चुअरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइज, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये एक प्लेस है, एस्चुअरी इज ए प्लेस वेयर ए रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशियन क्रिएटिंग brackish water. Okay guys, it is a place where a river or stream meets the ocean. So estuary is a place where a river or stream meets the ocean, creating brackish water. So what is brackish water? Brackish water means nunkhura. Fresh water comes from the river and it go to the ocean. Okay, ocean has a brackish water or salt water. Okay, now brackish water, it is here and it is pure salt water, but some salt comes to this part and fresh water comes to this part. So these two, river and ocean, will take the properties of one another. Okay guys, this is mud and sand bar has been made by the mud, or small particles of sand are coming from the river. These are covering the land, or these has been settled down at this place, and fresh water is going towards the ocean. So this is estuary. This is known as estuary. This hole is known as guys estuary. Okay, so you have to comment in Hindi language what is the name of estuary. Estuary एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नदी और धारा मिलती हैं, किससे? समुद्र से। गाइज बनाती हैं नूनखुरा पानी, ये फ्रेश पानी अंदर जा रहा है और गाइज यहाँ का जो सॉल्ट वाटर नमकीन वो अंदर आ रहा है रिवर के, और ये ओशियन में जा रहा है फ्रेश वाटर। थोड़ा नमकीन पानी हो जाएगा, ब्रैकिश वाटर से बोलते हैं। ये प्योर सॉल्टी है, ये ब्रैकिश वाटर नूनखुरा है, और यहाँ पर फ्रेश वाटर। ये मड मिट्टी जो इकट्ठी हो गई है, कि जो कहाँ से आ रही थी? रिवर से, नदी से बहती हुई यहाँ पर इकट्ठी हो गई, ये बार बना दिया, इससे बोलते हैं पूरा एस्चुअरी। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग गाइज बताएंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ऑल के साथ में। ठीक है गाइज, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नामों का जाप करते हुए कीर्तन करें, भजन करें और अपना ब्रह्मचर्य पालन करें। उसके लिए ध्यान कहाँ पर लगाएं? आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कहाँ पर है? माथे में, भौं के दोनों बीच में। इसमें ध्यान लगाते हुए नाम जाप करते रहिए और अपने लक्ष्य पे IAS की, DM SDM की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।